Sales isn't about scripts and memorizing scripts and following the right frameworks or something, right? It's completely about emotional intelligence. And emotional intelligence alone has helped me to close more than 50 lakh rupees plus in the last 14 months as a 22-year-old in India. So, hi, it's Shashank, and in this video, of course, I'm going to give you the sales success framework. So, first of all, as I mentioned, emotional intelligence is over scripts, it's better than scripts. Because I have been in this sales industry for the past 1.5 years now, okay? And usme I have gone through all the scripts, all the frameworks of the top, uh, influencers and jo log coaching dete about sales, the top players, the top sales people. I've been mentored by the top sales people in the entire country, right? So the main difference was initially what I was trying to do is I was trying to just copy them, उनको duplicate करने की मैं कोशिश कर रहा था at the initial stages of my closing journey, of my high ticket closing journey. अब उससे हो क्या रहा था, we were selling like a multi lakh product, approximately 2 लाख का था which I was selling, and I was just trying to follow the script, copy exactly what he was doing. Initially of course it helped, लेकिन उनके जो results आ रहे थे versus what results I was getting was drastically different. And in my mind I was completely like, मैं सोचते जा रहा था कि ये क्रैक क्यों नहीं हो पा रहा, why am I not able to do it when I'm following the script, when I am doing everything, तो ये हो क्यों नहीं पा रहा. And over a period of time, as experience grew and I took more calls, I've taken easily more than 500 calls so far in the past couple of जो भी times I'm in this industry, right? So the point is pretty simple. What was missing is emotional intelligence. That was the major needle mover in my journey, and that is exactly what I'm going to share with you. The very first thing that you need as a salesperson to become a top salesperson is inner alignment. If you're just starting out as a high ticket closer or a setter or whatever, right, sales industry if you are just jumping in right now, the first important thing is inner alignment. What do I mean by that is basically, as a salesperson, do you actually believe every word that is coming out of your mouth on a sales call? अब ऑफ कोर्स सुनने में लगेगा शशांक ये सब क्या है, सेल्स फ्रेमवर्क इज एग्जैक्टली क्या, क्वेश्चंस पूछने, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करने वो बताओ, ये नहीं. बट आई एम टेलिंग यू वो सब मैंने करके देखा है, एंड दिस इज द मेजर नीडल मूवर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. दिस एक्चुअली विल हेल्प यू टू गो फ्रॉम बीइंग एवरेज टू बीइंग बेटर देन 90% ऑफ द क्लोजर्स आउट देयर और द सेल्स पीपल आउट देयर. तो पहली चीज़ जो चाहिए होती है दैट इज इनर अलाइनमेंट, कि एक एक चीज़ जो भी आप बोल रहे हो अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द चैलेंज दैट योर प्रोस्पेक्ट इज फेसिंग, आप उसको कोई सोल्यूशन दे रहे हो, डू यू एक्चुअली बिलीव इट, डू यू एक्चुअली बिलीव इट इन लाइक अंदर से, डू यू नो कि हाँ दिस इज ट्रू, आई नो दिस टू बी ट्रू, आई यू 100% सर्टन ऑन दैट. जब तक वो इनर अलाइनमेंट नहीं आएगा तब तक यू वोंट बी एबल टू सेल ऑन अ कॉल. लोगों को, पीपल कैन सेंस इट, राइट, लोग एनर्जी पढ़ लेते. इट माइट साउंड लाइक वेरी वूडू स्टफ, लेकिन एनर्जी जो होता है पीपल कैन एक्चुअली ग्रैब इट. सबकॉन्शियस माइंड जो है आपका, इट्स वेरी पावरफुल, राइट, सो वो एनर्जी पिकअप कर लेता है वेरी इजीली. एंड इफ द पर्सन इज अ स्कैमस्टर यू कैन ऑफकोर्स पिक इट अप. आपके साथ भी हुआ होगा, राइट, यू आर टॉकिंग टू अ सर्टन पर्सन, उसने हर एक चीज़ बिल्कुल सही कह रहा है, मे बी इट्स अ न्यू फ्रेंड या किसी से आप मिले हो, तो ही इज़ ट्राइंग टू बी दिस अ पर्सन जो वो एक्चुअली में है नहीं, वो अपने बारे में सब कुछ आपको अचीवमेंट बता रहा है, एंड ही इज़ ट्राइंग टू पेंट अ पिक्चर, बट समवेयर एट द बैक ऑफ योर माइंड आपको पता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज वो इनर अलाइनमेंट आपको फील नहीं हो रही उसके वर्ड्स और उसके एक्शंस में. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डेवलप. विल टॉक अबाउट मोर ऑन दिस इन डिटेल लेटर ऑन इस पार्ट पे, बट अभी चलते आगे. साउंड ऑफ बिलीफ. What do I mean by sound of belief? The sound of belief is pretty simple. I'll give you a simple analogy over here or an example. Have you ever seen politicians, जब न्यूज़ पे आते हैं, वो न्यूज़ चैनल्स पे, तो एक पार्टी के पॉलिटिशियन कुछ बोल रहे होते, दूसरे पार्टी के पॉलिटिशियन इज सेइंग समथिंग एल्स, राइट, बट वो दोनों इतनी ज़्यादा कन्विक्शन के साथ बोलते हैं कि इट फील्स लाइक कि हाँ ये वाला तो सही ही बोल रहा है, ये दूसरा वाला पागल है. बट जब वो दूसरा पॉलिटिशियन बोलता है लगता है ये वाला पागल है. तो दैट लेवल ऑफ कन्विक्शन बिहाइंड योर वर्ड्स, वो जो एक कन्विक्शन दिखता है उनके वर्ड्स में, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द साउंड ऑफ बिलीफ. डू यू एक्चुअली बिलीव जो भी आप चीज़ अपना प्रोडक्ट समझा रहे हो, और यू आर प्रॉमिसिंग देम सम सॉर्ट ऑफ रिजल्ट, और यू आर suggesting them some sort of solution, do you actually believe it? Do you actually believe it, like in your core, do you actually believe it?
That is the sound of belief. An amazing example would be Narendra Modi. Whenever he is giving speech, like he's an amazing orator. I'm sure सबको ये पता है. Like the way he speaks is very influential. He can influence anybody, right? He has mastered this. And अगर आप उनका कोई भी speech सुनोगे, you can find the sound of belief. The conviction that he speaks with, you get influenced by that, right? That is what you need to bring on a sales call as an expert. So that is called the sound of belief. So this is just the starting. Now we will get into the nitty gritty aspects. ये actually में होते क्या है? I'll tell you. I'll dissect each and every point यहाँ पे and teach you how you can use it in your sales journey right now. Coming to the second point, calm confidence versus hyper salesman, right? तो इनिशियली क्या लगता था, एवरीबडी गोज थ्रू दिस. इनिशियली ये लगता है कि कॉल पे अगर जा रहे हो यू नीड टू बी लाइक वेरी इंथुजियास्टिक. हे मैन, हाउ यू डूइंग, हाउ वाज योर डे, हाउ इज योर वीकेंड गोइंग. हाँ, बट दैट डजंट वर्क. यू जस्ट इमेजिन कि आप एक सेल्स कॉल पे आए हो, यू टुक आउट टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल, यू आर रनिंग अ बिजनेस, आप आए कॉल पे एंड आगे जो सेल्स पर्सन आया, द पर्सन इज लाइक, हे मैन, हाउ यू डूइंग. यू विल बी लाइक, ओ ठीक है, शांत हो जाओ, क्या हो गया, it's just a call, calm down, right? That is exactly what most majority people do. आपने वो कार सेल्समैन तो देखे होंगे ना, राइट? दे आर ऑल हाइप्ड अप एंड मोस्टली सेल्स पीपल ट्राई टू बिकम मोटिवेशनल स्पीकर, कि उनको बस दे वांट टू इंस्पायर पीपल. बट अगर वो सेल्स कॉल में करोगे, इट डजेंट वर्क. वन टू मैनी ऑफ कोर्स इट वर्क्स, क्योंकि आप एक बहुत बड़े ऑडियंस को उस टाइम करो, बट वन टू वन पे वो काम नहीं करता. तो यू नीड टू हैव a calmed confidence instead of being a hyper salesman. What do I mean by calmed confidence is, you know कि आप अगर कॉल पे आए हो, you have done this thousands of times. I'll give you a simple example here. Let's say आप एक sport खेलते हो. For example, I play football. I used to play football, right? तो there can be two scenarios. एक scenario होगा कि you know there is a team जिसके साथ हमारी मैच होने वाला है, एंड वी नो कि वो टीम FC ही है. वी कैन ईजिली लाइक क्रश देम, हम जीत जाएंगे. वी नो आवर स्किल्स आर बेटर. लाइक आपके साथ भी होगा इन लाइफ, राइट? वेर यू नो कि यू आर बेटर देन द अदर पर्सन एंड यू आर लाइक सुपर रिलैक्स्ड कि आई हैव गॉट दिस, मैं ये कर लूँगा, राइट? दैट इज कॉल्ड calmed confidence, where you are like comfortable in your own skin, you are 100% confident, and you know you have done this like thousands of times and you have already won the match. That is called calmed confidence. Whereas to build upon that example, let's say कि अब आप फुटबॉल खेलने जा रहे हो, but it is with a team who is way more experienced than you, right? It's way more like aggressive than you on the field. तो उस टाइम पे क्या होगा? Before going into the match, you'll be a bit nervous, right? थोड़ा सा nervousness होगा, you'll be bit scared, anxiety होगी, and you'll try to like pump yourself up कि we got this team, चलो चले. That is called being hyper salesman. So this is the difference between calm confidence versus hyper salesperson vibe, you can say. So आपको जो करना है, you need to have that calm confidence, and of course that would come after practicing and doing a lot of calls. ऐसा नहीं होगा कि first call पे जाओगे आप अपने life के and you'd be like having that level of calm confidence. Not possible, right? So eventually once you have started gaining that experience as a salesperson, फिर जाके उस level पे you'll reach where you'll get this calmed sense of confidence within you. And जो prospect आता है, he can sense it. He can sense कि he's speaking to an expert. ये कोई random इंसान नहीं है. He's not a salesperson, he's an expert. That is the overall vibe that you need to give off to your prospects, कि they are speaking to an expert. Second point is depth in expression is equal to your credibility. What do I mean by that? Depth in expression is basically कि let's say if you want to become a motivational speaker, या let's say you want to take some business advice, correct? Business advice लेते, right? One case scenario, आप directly मुकेश अंबानी के पास गए and he is giving you business advice. So there would be a certain level of depth in his expression, right? आपको पता होगा कि एक एक शब्द जो ये इंसान बोल रहा है, it is coming from thousands of hours of experience that he has put into the work. He has actually been in the trenches. उसने actual में hard work डाला है. He has built a multi-billion-dollar company, and he plays an important role in the entire country's GDP, blah blah blah. But वो experience उनके words में आपको दिखाई देगा. There would be a certain weight behind
how he speaks, behind every word that comes out of his mouth. Whereas अगर वो same advice एक let's say कोई भी normal इंसान just listens to that speech and tries to just copy that and say that, वो same level of impact नहीं आएगा. That is exactly what we call the depth in expression. So you need to develop this depth in expression which will allow you to increase your credibility on a sales call. वो कैसे होगा? Once you actually are an expert. There is no shortcut in sales. लोग best objection handle, best ये, best framework, question, blah blah blah. They try to figure that out, but those are just simple tactics and वो long term fix नहीं है. It is just like a band-aid. एक बैंडेड लगा दोगे 2 महीने बाद वो फिर से खुल जाएगा, if not after 1 week, right? Whereas अगर एक permanent solution निकाला, stitches लगा दिए, then you are good for life, correct? तो this only comes with a lot of efforts, lot of practice. Sales is one of the most boring job. इसमें अगर अच्छा होना है आपको, you just need to put in more hours, do more practice and become जो basics आपको वो करने for a long period of time. That is what most people aren't able to do. That's why they are not able to become good sales people, right? तो ये जो डेप्थ इन एक्सप्रेशन है, आप कैसे डेवलप कर सकते हो? इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, अपने प्रोडक्ट जिसको आप बेच रहे हो और सर्विस, यू शुड नो इट इनसाइड आउट. आपको एक क्लाइंट टेस्टिमोनियल के बारे में पता होना चाहिए, कौन आपका आइडियल क्लाइंट एवटार है वो पता होना चाहिए, पीपल हु यू हैव हेल्प्ड उनका क्या जर्नी रहा था ये सब पता होना चाहिए, प्रोडक्ट में क्या डिलीवरेबल्स है, एक एक चीज़ कैसे होता है, यू शुड नो एवरीथिंग. एंड यू शुड नो कि आपकी इंडस्ट्री के मेन 2-3 चैलेंजेस क्या है एंड हाउ टू सॉल्व इट प्रॉपरली. लुक, इफ़ यू आर अ बिजनेस ओनर, राइट, तब तो आपका ये डेप्थ इन एक्सप्रेशन ईजिली आ जाएगा. क्यों? क्योंकि आपने वो पूरा बिजनेस फ्रॉम ग्राउंड अप बनाया एंड दैट इज़ योर एक्सपर्टीज जो आप बेच रहे हो. बट इफ़ यू आर अ सेल्स पर्सन, आपको ये डेवलप करना होगा. डेवलप कैसे होगा? इफ़ यू लाइक अंडरस्टैंड कि मेन चैलेंजेस क्या है, उनके सोल्यूशंस क्या है, एंड द अदर थिंग्स दैट आई मेंशन्ड अर्लियर, राइट? That is how you can develop this depth in expression, which is very important. Prospects can like literally pick it up. आप भी pick up कर लेते हो if an expert is speaking or if let's say a newbie or a beginner is speaking, right? तो पता लग जाता है. तो overall, to conclude this part, the second pillar, it's vibe is always more important than words. What do I mean by vibe? The overall energy in a call. How you are presenting yourself. आपका क्या energy on a call? Are you like super हे मिस्टर प्रॉस्पेक्ट, हाउ यू डूइंग, हाउज योर डे गोइंग, यू नो, लाइक ये बेस्ट है आपकी ज़िंदगी के लिए, लेट्स मूव अहेड. ये हो गया हाइपर सेल्समैन. वेयर एज अनदर कुड बी, हे मैन, आई नो लाइक यू आर अ बिट नर्वस, इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग 2 lakh rupees on your personal development, right? But don't you think not doing this is even more riskier? So let's go ahead. That is like calm confidence. So that is the vibe पे you need to work on your energy. You need to actually work on that. इसका कोई शॉर्टकट नहीं है. ऑफकोर्स ये थोड़ा सा अपना मेटाफिजिकल, यू कैन से, सब कम्युनिकेशन की तरफ चले जाता है, बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल. बट दैट इज़ द मेन थिंग जो आपको एज अ सेल्स पर्सन वुड डिफ्रेंशिएट यू फ्रॉम ऑल द अदर 90% ऑफ द पीपल आउट देयर. अगर आपने इस पे काम शुरू किया, वर्क ऑन योर वाइब, ऑन योर एनर्जी. Have that energy ki you have done this a thousands of times and you know what you're talking about. That is how you become the top salespeople. Next thing is unsaid signals. Now this is very important. Simple rule है, अगर sales में हो, prospects always lie. Never believe a prospect. क्यों? क्योंकि people lie. You might be like, अगर आपने calls अभी तक नहीं लिए, you might be like, नहीं, लोग क्यों lie करेंगे, especially on one-on-one calls. I'm telling you from experience, people always lie. So that should be like a rule in your mind कि prospects lie. And आपको हमेशा उनसे, you need to ask them more probing questions in order to uncover कि what's the real concern. खरीद क्यों नहीं रहे वो. So unsaid signals are basically looking at their body language and basically looking at the tonality किसके साथ वो बोल रहे, right? That gives you a lot of information about whether they are lying or whether they are hiding something from you or not. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपने पूरी कॉल कर ली किसी के साथ, इन दी एंड दे आर लाइक, या शशांक, एवरीथिंग साउंड्स गुड, लेट मी जस्ट गिव मी लाइक अ डे और सो एंड आई विल गेट बैक टू यू, वुड दैट बी फाइन? ये हो गया आपका एक ऑब्जेक्शन. मोस्ट सेल्स पीपल व्हाट वुड दे डू इज कि वो इसी के पीछे, व्हाट डू यू वांट टू थिंक, कब मेरे पास आओगे, व्हाट्स द टाइम, डेट, अच्छा ठीक है, बाय.
तो मतलब वो सरफेस लेवल पे घूमते रह जाते। बट द मेन प्रॉब्लम इज दे विल थिंक अबाउट इट। आप मुझे बताओ कि 1 घंटा किसी के साथ कॉल पे आपने स्पेंड किया है, उसके बाद द पर्सन इज टेलिंग यू, आप उस पर्सन को बोल रहे हो कि आई थिंक अबाउट इट। तो इसका मतलब क्या है कि आपको कोई ना कोई अनसर्टेनिटी, आपको लग रहा है कि दिस सर्विस माइट नॉट बी द राइट फिट फॉर यू, आपके लिए काम नहीं करेगा। देयर इज सम अनसर्टेनिटी आइदर ऑन द पर्सन कि ये पर्सन मेरी हेल्प नहीं कर सकता, या फिर उसके प्रोसेस पे कि ये जो सर्विस दे रहा है ये मेरी हेल्प नहीं कर सकता, या यू आर जस्ट नॉट श्योर कि ये आपके लिए काम करेगा कि नहीं। 3 में से एक ही हो सकते, राइट? बट आप वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे, यू आर जस्ट टेलिंग कि आई नीड टू थिंक अबाउट इट। अब अगर वो पर्सन ने आपको छोड़ दिया, देन वो जो ऑब्जेक्शन था इट नेवर लाइक कम्स टू द सर्फेस, वो कभी हैंडल ही नहीं हुआ, राइट? तो मोस्टली सेल्स पीपल आर जस्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ऑन सर्फेस, एंड जो रियल कोर रीजन होता है वो वहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाते। टू एक्चुअली गेज दैट कि इंसान सही बोल रहा है कि नहीं, यू नीड टू लुक एट द अनसेड सिग्नल्स, द टोनालिटी, द बॉडी लैंग्वेज, द एनर्जी ऑन द कॉल। इफ आफ्टर द प्राइस ड्रॉप आपका जो प्रॉस्पेक्ट है ही इज लाइक ओके ठीक है समझ गया, आई नीड टू गो, मेरा मीटिंग है, दैट इज लाइक उसको नहीं खरीदना। उसके बाद वो जो भी ऑब्जेक्शन दे रहा है इट इज जस्ट अ स्मोक स्क्रीन, ही इज टेलिंग यू कि आई डोंट ट्रस्ट यू, मेरे को अनसर्टेनिटी है, राइट? तो एज अ सेल्स पर्सन यू शुड नो हाउ टू गेज दैट. And lastly, validate, don't argue, man. The biggest thing. Of course, I have worked with a lot of salespeople, closers. I myself, I'm also a closer right now, right? लोग क्या करते हैं? They start arguing with their prospects. कि if let's say prospect is giving you an objection कि यार शशांक, it's too expensive, I think. Expensive? Expensive कैसे? Like what do you mean by expensive? आपको expensive क्यों लग रहा है? And they literally start arguing with the people. अब जब भी आप आर्ग्यू करोगे यू कैन अज्यूम कि सेल तो गया आपका, वो पर्सन नहीं खरीदने वाला। इवन इफ यू विन द आर्ग्यूमेंट फिर भी आपका सेल गया है। तो एज अ सेल्स पर्सन यू शुड वैलिडेट इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग विद पीपल। हाउ डू यू वैलिडेट? फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी टेल्स मी कि यार शशांक इट्स टू एक्सपेंसिव, आई विल बी लाइक ओ नॉट अ बॉदर एट ऑल मैन। सो keeping the price aside, how are you feeling about the process overall? Are you still feeling like this can actually help you to reach your XYZ goals that we discussed on the call? Yeah, Shashank, बहुत बढ़िया, I am 100% sure कि मेरा help कर देगा. Gotcha, understood. So what I'm understanding, Mr. Prospect, is you're not going back and forth in your mind कि आपको ये करना है कि नहीं. You are sure कि आपको ये करना है, but finances थोड़ा issue है. It's like a bit out of your budget, जिसके वजह से you're feeling it's expensive. Would that be correct? Yeah, Shashank. Then I'll go into actually helping them in the finances. तो पहले मैंने क्या किया कि आई मेक श्योर कि प्रोसेस वाइज इज 100% सोल्ड, एंड असली में उसको सिर्फ फाइनेंसेस में दिक्कत है कि वो एक बार में मुझे 1.5 लाख 2 लाख वट एवर नहीं दे सकता, राइट? दैट इज एग्जैक्टली हाउ यू वैलिडेट इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग विद पीपल. यू आस्क देम क्वेश्चंस एंड यू वैलिडेट वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग. आप उनसे पूछ सकते हो व्हेन यू से एक्सपेंसिव, डू यू मीन कि आपको इसमें 1.5 लाख का वैल्यू नहीं दिख रहा, और डू यू मीन कि ये एक्सपेंसिव है अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल सिचुएशन राइट नाउ, राइट? एंड इफ द पर्सन इज सोल्ड ऑन योर प्रोसेस, इट यूजुअली इज द सेकेंड वन कि उनके पास पैसे नहीं एक बार में देने के. सो दैट इज द थर्ड पिलर विच वी कवर्ड. मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन, मिरर प्रिंसिपल. दिस इज द गोल नाउ. मिरर प्रिंसिपल इज समथिंग जो मैं पहले भी बात करता था ऑन दिस चैनल, बिकॉज दिस चैनल यूज टू बी लाइक यू कैन से यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ माई एंटायर जर्नी. So I used to talk about personal development, manifestation like 1.5 years back on this channel. You can go and watch those videos as well, right? So mirror principle is pretty simple. Exactly जो आप हो as a person, that is exactly what you're going to attract in terms of your prospects, in terms of your objections. For example, अभी जो आपके objections है, that is the objections that you will be getting on a call. अगर आपने कभी आज तक हाई टिकट नहीं खरीदा, अगर आपने अपने नॉलेज पे 2 लाख रुपए नहीं खर्चे कभी, देन योर प्रॉस्पेक्ट्स आर गोइंग टू गिव यू द सेम ऑब्जेक्शंस कि लेट मी थिंक अबाउट इट, इट्स टू एक्सपेंसिव, आई डोंट ट्रस्ट यू. तो मेनली जो जो आपके ऑब्जेक्शंस होते हैं, राइट, इट कम्स बैक टू यू एज अ सेल्स पर्सन. आई नो इट माइट साउंड बहुत ज़्यादा कि ये तो कुछ भी बोल रहा है शशांक, बट कम इन टू द इंडस्ट्री, डू सम कॉल्स, आपको पता लगेगा व्हाट डू आई मीन. यू कैन आस्क एनी सेल्स पर्सन, दे विल actually validate this कि your objections is equal to their objection. If you want to build that high influence, you need to keep your high standards. क्यों? क्योंकि as a high ticket closer, what you are asking people to do is increase their standards. अगर कोई आपके पास आया है and let's say they have a marketing issue and you are a marketing agency helping them to solve those
getting them highly qualified leads, right? End में if the person is saying कि you quoted them a price of 2 lakh rupees per month आपके सर्विस के लिए, राइट? पर्सन इज लाइक बहुत एक्सपेंसिव है. नाउ जब तक वो इनर अलाइनमेंट, जब तक वो हाई स्टैंडर्ड्स आप में नहीं होंगे, तब तक आप वो इन्फ्लुएंस नहीं ला पाओगे उन पे. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? डू यू एक्चुअली फॉलो व्हाट यू से? जो जो चीज़ें आप बोलते हो अपने माउथ से, डू यू एक्चुअली फॉलो दैट? डू यू एज अ सेल्स पर्सन एक्चुअली हाई स्टैंडर्ड्स? जब तक आपके खुद के स्टैंडर्ड्स हाई नहीं है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू इन्फ्लुएंस अ पर्सन, राइट? किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे आप, एंड आप इन्फ्लुएंस करके उसको नहीं बोल पाओगे कि अपना स्टैंडर्ड को हाई करो थोड़ा, राइट? क्योंकि ऑफकोर्स ड्रॉपिंग अ 2 लाख का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्स समबडी टू हैव दैट लेवल ऑफ हाई स्टैंडर्ड थिंकिंग. कोई भी 2 लाख ऐसे नहीं दे देता, स्पेशली फॉर अ सर्विस, क्योंकि 2 लाख में गाड़ी आ जाएगी, बाइक आ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, राइट? बट यू आर आस्किंग दैट फॉर अ सर्विस, दैट टू फॉर 1 मंथ. तो पर्सन को उस लेवल पे लाना होगा, उसको उस तरीके से सोचना होगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से कि अगर अभी ये करूँगा फ्यूचर में इतना रिटर्न आ सकता है, करेक्ट? तो दैट इज कॉल्ड हाई स्टैंडर्ड थिंकिंग. बट अगर आपको किसी को उस लेवल पे लेके आना, यू शुड हैव हाई स्टैंडर्ड्स योर सेल्फ फर्स्टली. इफ अगर आप यू आर कटिंग कॉर्नर्स, यू डू नॉट, यू गो फॉर बाइंग चीप स्टफ, एंड आप बहुत ज़्यादा मनी को लेके यू आर वेरी इन अ स्कैरसिटी माइंडसेट, तो आप वो कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे उनको टू बाय हाई टिकट स्टफ. तो बेसिकली कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स इज बेसिकली द बेस्ट पर्सनल डेवलपमेंट जो मैंने आज तक की है. आई यूज्ड टू टॉक अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट ऑन दिस चैनल अर्लियर. द फास्टेस्ट वे आई वुड से to rapidly increase your personal development is first by coming into sales and then launching your own business. This is the pathway that I have like used. Came into sales, then started launching my own business, correct? So that is the best way you can develop yourself. क्यों? क्योंकि all your insecurities, all your weaknesses, everything that you hide from the world, ये सारी चीज़ें आपकी सेल्स कॉल पे आएगी. And all these things will make sure कि आप टॉप सेल्स पर्सन ना बन सको until and unless you work on them. तो let's say if you are not very confident, then वो आपके सेल्स कॉल में दिखेगा. If you let's say have never dropped a good investment on yourself, वो आपके सेल्स कॉल पे दिखेगा. Let's say if you are, I don't know, let's say you are scared to speak to corporate people, which used to happen with me earlier, right? कि कोई corporate individual आ जाए 20 years का एक्सपीरियंस लेके, ही इज़ लाइक अ सी लेवल एग्जीक्यूटिव अर्निंग गुड मनी, 10 lakhs का उनका पर ईयर एनम, दैट्स देयर सैलरी पैकेज, एंड यू आर स्पीकिंग टू देम एज ए लाइक अ 21-22 year old. तो अपने आप वो नर्वसनेस आएगी, राइट? एंड दैट कैन ओनली बी इम्प्रूव्ड बाय वर्किंग ऑन योर सेल्फ. वो इनसिक्योरिटी को आपको सॉल्व करना होगा कि वाई आर यू एक्चुअली नर्वस टॉकिंग टू हिम. ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन बींग, उनको प्रॉब्लम है, मेरे पास सोल्यूशन है. I am the expert to solve this challenge. अब वो अगेन ये सारी चीज़ें एक दूसरे से, इट इज़ ऑल इंटरलिंक्ड, राइट? तो जब तक वो इनर अलाइनमेंट एंड द डेप्थ इन एक्सप्रेशन एंड द साउंड ऑफ बिलीफ ये सब नहीं होगा, तब तक ये नहीं हो पाएगा. यू वोंट बी एबल टू ओवरकम योर इनसिक्योरिटी, एंड दैट वुड लीक ऑन योर सेल्स कॉल. सो सेल्स इज इक्वल टू पर्सनल डेवलपमेंट. द बेटर इनपुट्स यू पुट, द बेटर आउटपुट्स यू गेट. सिंपल. जितनी अच्छी चीज़ें कंटेंट को कंज्यूम करोगे, यू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी, यू वर्क ऑन योर सेल्फ, उतना ज़्यादा बढ़िया आपका सेल्स आउटपुट रहने वाला है. सो दैट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू वर्क ऑन इफ यू आर एक्चुअली वांटिंग टू बिकम अ top 1% of the salesperson. Next point is emotions first, emotional down payment. This is a very big point. Whenever somebody is starting out, and even most experienced salespeople, उनको लगता है कि people make decisions based on logic. Business owners are all logical, corporate individuals are all logical. उनको logically समझाऊंगा ना मैं अपने offer के बारे में, they will be like sold. That's 100% false. सारे लोग दुनिया में, everybody makes decision based on their emotions. That's why emotions is first. अगर आपके sales call में you are not able to make them feel that emotion, they are not going to buy. Simple. अगर सेल्स कॉल पे दे आर नॉट फीलिंग दैट पेन, जिसके वजह से उनको चेंज लाना है अपने लाइफ में, जिसके वजह से दे केम टू यू टू फाइंड योर सर्विस, दे आर नॉट गोइंग टू बाय. आप उनको बेस्ट लॉजिकल सर्विस दे दो, स्टेप बाय स्टेप माइंड मैप बना के समझा दो, बेस्ट पीपीटी दे दो, डजेंट रियली मैटर.
If emotions are not there, sale is not there. There is a simple example देता हूँ. When you go to gyms, there is like no pain is equal to no gain, right? ये होता है. तो सेल्स में होता है कि no pain is equal to no sale. जब तक कॉल पे पेन नहीं है, सेल नहीं आने वाली. That is a rule that you can like just remember. And emotional down payment, again same point है, just to make more on that, कि जब तक वो इमोशनली इन्वेस्ट नहीं होंगे आपके सोल्यूशन में, दे आर नॉट गोइंग टू बाय. आप लॉजिकली पूरा सब कुछ दिखा दो फिर भी नहीं खरीदेंगे. एग्जाम्पल, लेट्स से इफ यू वॉच माई लास्ट वीडियो, यू नो आई एम वर्किंग विद अ ट्रेडिंग कोच राइट नाउ. लेट्स से अ पर्सन कम्स टू मी, अ बिजनेस ओनर, 1 करोड़ के कैपिटल के साथ, राइट. एंड मैं उनको दिखा रहा हूँ एंड आई नो कि आई कैन हेल्प हिम. अगर मैं उनको एकदम लॉजिकल वे में सब कुछ समझा दूँ कि आप अगर 1 करोड़ के कैपिटल पे 5% भी बना लोगे, दैट इज़ लाइक 5 लाख रुपीज़ एवरी मंथ, जो आप पैसिवली बैठ के कमा रहे हो पर मंथ, साल का वो 60 lakhs हो जाएगा. दैट इज़ ऑल गुड लॉजिकली. बट जब तक वो इमोशंस नहीं आएगा, दैट गाय इज़ नॉट गोइंग टू बाय. इमोशन कैसे आएगा कि ऑफकोर्स यू विल हैव टू डू सम पेन प्रोबिंग, निकालना होगा कि उनको करना क्यों है ट्रेडिंग. 1 करोड़ है, बैठे रहो, यूज़ करो नाम से, क्यों करना है. इट बी लाइक कि नहीं, अभी मेरे को जॉब करना पड़ रहा है, मेरे को बिजनेस चलाना पड़ रहा है, उसमें टाइम बहुत जा रहा है, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, ट्रेडिंग के थ्रू मेरे को वो टाइम फ्रीडम चाहिए. ओ, दैट इज़ द इमोशनल पॉइंट, जो हाँ जिसके वजह से विल गेट अ सेल. दैट्स द second last point, and the last point is expert frame. Again, sort of same thing, guide and don't dominate on a call. Expert frame is to, as a new person who is coming into sales versus an experienced person as well, it's always good to recall. आपको sales call पे you need to act as an expert. What do I mean by that? Let's say you're going to a doctor, right? आपको, let's say you are having a stomach ache or a headache. You went to the doctor and doctors ने आपसे सबसे पहले क्या किया? He made you sit. पहले आपने अपॉइंटमेंट लिया, आप बैठे उसके आगे जाके. He asked you क्या हो रहा है. आपने बताया ये हो रहा है. अच्छा, यहाँ दर्द हो रहा है, अभी कल कोई दवाई ली, कुछ खाया था बुरा, what was your diet? He'll ask you bunch of questions, right? ऐसा नहीं होगा कि वो सीधा आपको दवाई दे देगा. Correct? That is the overall vibe that you need to bring to the call. कॉल पे अगर कोई आपके पास आ रहा है, यू आर द डॉक्टर ऑन दैट कॉल, क्योंकि उनको जो चैलेंज है उसका सोल्यूशन आपके पास है. तो यू नीड टू एक्ट एज अ डॉक्टर. इनिशियली आपको सवाल पूछने उनसे, द राइट क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम है, राइट, एंड देन यू गिव देम अ सोल्यूशन. ऐसा तो होता नहीं ना कि आप डॉक्टर के पास गए हो और आप बोल दोगे कि हाँ पेट दर्द हो रहा है, बस दवाई दे दो. डॉक्टर आपसे पूछ रहा है कि हाँ क्या खाया था, नहीं बस दवाई दे दो. देन डॉक्टर क्या करेगा, निकलो यहाँ से, राइट. तो आपको वो डॉक्टर वाले फ्रेम में आना है while taking a call, that expert frame, कि you are the expert, you know क्या challenges है, you have solved it for hundreds of people already and you can solve it for them as well. But for doing that you need to answer my questions firstly. That is what I mean by the expert frame. अब इसका ये मतलब नहीं कि you start dominating people, basically you are guiding them just like a doctor. एक डॉक्टर को वो नहीं करना पड़ता कि प्लीज़ सर्जरी करा लो सर, आपके नींद का सर्जरी करा लो, कुछ करा लो प्लीज़, मेरे से ही करवाना, किसी और के पास मत जाना. डॉक्टर को बेचना नहीं पड़ता, राइट. सिमिलरली आपको भी बेचना नहीं चाहिए ऑन अ कॉल. यू शुड नेवर सेल ऑन अ कॉल. यू शुड जस्ट ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. सिंपल. अगर आप उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो एंड आपने उनको दिखा दिया कि दिस इज हाउ आई कैन सॉल्व, दे विल ऑटोमेटिकली बाय. लेकिन लोग मोस्टली क्या करते हैं, सेल्स पीपल, दे ट्राई टू बी पुश यू ऑन द कॉल, प्रेशर डालते हैं. दैट इज़ एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ हाई टिकट क्लोजिंग. वो वर्क नहीं करता, राइट. उससे थोड़े बहुत सेल ले आओगे बट इवेंचुअली बर्न आउट हो जाओगे, क्योंकि आप 100 लोग से बात कर रहे हो तो उनमें से लाइक लिटरली कुछ लोग ही कन्वर्ट हो रहे हैं, 2-3 लोग. वेराज अगर आप ये वाला स्टाइल यूज़ करोगे, एक्सपर्ट फ्रेम, यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग ऑल ऑफ दिस, 100 लोग से बात करो तो 10 लोग खरीदेंगे, 15 लोग खरीदेंगे. दैट इज़ हाउ यू बिकम a sales person, a top sales person. That is how I was able to actually generate more than 50 lakh rupees in revenue for businesses in the past 14 months as a 22-year-old, that too in India. And हम लोग इंडिया में ही बेच रहे थे अपना हाई टिकट प्रोडक्ट एंड सर्विस, राइट. सो इट मीन्स कि इंडिया में भी पैसा है, यू कैन सेल इट. इफ दिस इज समथिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन हाई टिकट क्लोजिंग, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. इस पे आई कैन मेक मोर वीडियोज़. एंड फॉर दिस वीडियो, अगर यू आर स्टिल वॉचिंग दिस, I'm sure you are like a serious individual. Like कर दो, subscribe button is there, just click on it, क्योंकि I'll be documenting my entire journey from now on and I'll be sharing more value nuggets just like this. So stay tuned, I'll see you in the next one.